न्यूरो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें। सर ये हमारा सिग्नेचर है ओपनिंग का। Yes. गुड इवनिंग एवरीवन इन इंडिया। हमारे यहाँ पे सुबह हो रही है, बट वी आर वेरी हैप्पी टू हैव डॉक्टर पुराणिक सेकंड टाइम इन Synergy, and today we are going to hear from him a very different topic, which many of us have not taken interest during our medical school, but maybe during our uh, professional life we might have taken interest, but we want to develop more of the interest. तो थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहती थी सर के वर्क के बारे में। सर का ही आर्टिकल है। So Dr. Puranik has a national annual award of medical humanities, which serves as a platform to inspire and encourage healthcare professionals and scholars to embrace the intersection of medicine and humanities. It emphasizes the importance of a holistic approach to healthcare, one that encompasses not only the scientific aspects, but also the ethical, social, cultural, and emotional dimensions. तो आपने सर ये अवार्ड किया है establish, and every year you recognize someone who values the diverse perspective, insight, and narratives that the healthcare can become more patient-centered, compassionate, and culturally sensitive. And please note that this award is exclusively to the one individual who deserves it. It represents a tribute to their exceptional work and serves as an inspiration for others to embrace the fruitful synergy between medicine and humanity. So I thought this word was the highlight for me, that it creates synergy between medicine and humanity. Thank you. So on that note, sir, over to you. We'll love to hear from you what you have to share with us. Thank you. Okay. So, welcome everybody, and thanks to Chaya, Bharat, and the whole Synergy group. Good that you mentioned the National Annual Award, which was started in the year 2019. And this year, there is an exception. We have changed the rules a bit. We were planning to give it to Dr. Lopa Mehta from KEM Hospital and GS Medical College, Mumbai, for her exemplary work in the field of medical humanities. But she, on principle, doesn't accept any award. And then she suggested that you give it to the Department of Medical Humanities, which had been established by her many years back and which has been doing good work. So this year we are giving the award to the department, and we are not giving it in the form of cash or check. We are giving books amounting to rupees 1 lakh for the Department of Medical Humanities at KEM Hospital. And this program is scheduled on 27th of September in this month on a Saturday. Myself and Nirja will be going there, and the ceremony will be held in the KEM Hospital, and we will carry with us a box full of books on medical humanities for the library of the institution. So this has been a change, and I think we will follow this method in the coming years also. So now I can begin with sharing of my more screen. synergy, sir, more synergy. Yes, more synergy. Yes. So thank you everyone for joining. Thank you. So I start now. Neurology in arts and literature, and neurology of arts and literature. So these are the two subtitles of my presentation. And the purpose or the reason or the philosophy behind choosing this is to escape from the tyranny of binary. To escape from the tyranny of binary. बाइनरी मतलब हम चीजों को सफेद और काले में बांटते हैं, जबकि बहुत सारे शेड्स ग्रे के बीच में होते हैं। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है चीजों को द्वैत में देखने की, उसको हम बाइनरी बोलते हैं। और जब बाइनरी का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगता है तो हम एडजेक्टिव लगाते हैं द टायरनी ऑफ बाइनरी। उसको काउंटर करने के लिए और ये बताने के लिए कि चीजें उतनी बाइनरी नहीं होती जितनी कि आपको प्रतीत होती हैं, ये सब्जेक्ट मैंने चुना है। तो कई लोग ग्रेट डिवाइड सोचते हैं, कल्पना करते हैं। उदाहरण के लिए रुडियार्ड किपलिंग ने कहा था, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन शैल मीट। लेकिन ऐसा नहीं है, मिलते हैं, समानताएं होती हैं,
मिलन होता है। उसी तरह से चार्ल्स पर्सी स्नो एक फिलोसोफर ऑथर हैं, उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध लेक्चर में 1959 में कहा था, उस लेक्चर का टाइटल था द टू कल्चर्स एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और चार्ल्स पर्सी स्नो ने कहा था कि ए गल्फ ऑफ म्यूचुअल कॉम्प्रिहेंशन exists between the literary intellectuals of the humanities side and between the physical scientists. और ये जो डिवीजन है, it is bad. It hinders the progress and it threatens the society's ability to solve its most serious problem. तो मेरी आज की टॉक जो है, ये जो दो म्यूचुअली इनकॉम्प्रिहेंसिबल फील्ड हैं, आर्ट लिटरेचर ऑन वन हैंड एंड न्यूरो साइंसेस ऑन अदर हैंड, दोनों के बीच की जो खाई है उसको पाटने का प्रयास है। दोनों के बीच की जो बाइनरी है, उनके स्थान पर एक स्पेक्ट्रम की चर्चा करने का आज का मेरा उद्देश्य है। आर्ट एंड साइंस नीड नॉट बी स्ट्रेंजर आर कॉन्ट्रेडिक्टरी। मेडिसिन एंड न्यूरोलॉजी ऑन वन हैंड एंड ह्यूमैनिटीज आर लाइकवाइज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एरिक कैंडल को नोबेल प्राइज मिला था आज से 20 साल पहले। उनका वर्क था मेमोरी के ऊपर, एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में। और उन्होंने कहा कि मन का बायोलॉजिकल अध्ययन और शोध न केवल एक वैज्ञानिक बल्कि कलात्मक उपादान भी है। मन की बायोलॉजी एक पुल है जो दो विज्ञान को जोड़ता है। एक तरफ प्राकृतिक साइंस है, नेचुरल साइंसेस हैं, और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटीज हैं जिनका ताल्लुक मनुष्य की अनुभूतियों में निहित अर्थों से है। और दोनों की सिंथेसिस से जो इंसाइट हमको मिलेगी, उससे न केवल मानसिक और न्यूरोलॉजिकल रोगों के बारे में हमारी समझ विकसित होगी, बल्कि हम अपनी स्वयं की गहरी पहचान कर पाएंगे। तो मैं क्या क्या चीजें कवर करूंगा? मैं शुरुआत करूंगा कि क्या प्राणियों में कला होती है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा न्यूरोलॉजी में कला और लिटरेचर के, और इन उदाहरणों को मैं दो भागों में बांटूंगा। ऐसे उदाहरण जो बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के किए गए, अनायास, जिसने वो करा उल्लेख, उसे नहीं पता था कि वो न्यूरोलॉजी का उल्लेख कर रहा है, अनायास। और फिर कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा जो कॉन्शियस एफर्ट थे, सायास। उसके बाद में मैं चर्चा करूंगा संक्षेप में कि ऐसी कौन सी न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कला और लिटरेचर की रचना में और उसके आस्वादन में, एप्रिसिएशन में हमारे ब्रेन में घटित होती हैं। और फिर अंत में कहूंगा कि ब्रेन इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट। तो ये मेरा स्कोप ऑफ कन्वर्सेशन है। तो अब हम आते हैं कि क्या प्राणियों में कलात्मक सेंसिबिलिटी और क्रिएटिविटी, कलात्मक संवेदनशीलता और रचनात्मकता होती है? तो निस्संदेह इसका उत्तर है हाँ। और इसके कुछ उदाहरण मैं दूंगा। ये एक चिड़िया होती है जिसका नाम है साटिन बावर बर्ड, और ये अपना बावर बनाती है, मतलब घोंसला और घर बनाती है, और उसको तरह तरह के फिजिकल ऑब्जेक्ट से सजाती है। ये उसके ब्लू ट्रेजर्स हैं इस चिड़िया के। और ये क्यों करती है? ये नर है, पुरुष है, वो लेडीज को इम्प्रेस करने के लिए करता है। मेरे ख्याल से होमोसेपियंस अपवाद है, अन्यथा अन्य सभी प्राणियों में इट इज द मेल हु डेकोरेट्स हिमसेल्फ और द सराउंडिंग्स अराउंड हिम टू इम्प्रेस द फीमेल। केवल मनुष्य इसके उल्टे होते हैं शायद, होमोसेपियंस। उसी तरह से चिंपैंजी को हम आर्ट सिखा सकते हैं। और फिर ये एक मछली है, इसको, ये मछली पफर फिश है, व्हाइट, जो कि समुद्र की पेंदी पर पत्थरों को जमा कर सी बेड में एक सर्कुलर पैटर्न बनाती है। और अगेन द पर्पज इज कोर्टशिप डिस्प्ले टू अट्रैक्ट अ फीमेल फॉर मैटिंग। देखो देखो देखो, मैं कितना योग्य हूं, मेरे साथ संसर्ग करो ताकि अपनी संतानें, तुम्हारी संतानें बड़ी अच्छी होंगी, उनके अंदर भी इतने ही गुण और इतने अच्छी चीजें होंगी। ये उसका मैसेज होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है इस तरह के एनिमल्स को। और ये एक चिड़िया होती है जिसको लायर बर्ड बोलते हैं, और ये डांस भी करती है और गीत भी गाती है। मैं उसका एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ। आई डोंट नो ऑडियो आएगा कि नहीं, देखना पड़ेगा, पर आप डांस तो देख पाएंगे। सो दिस इज द सुपर्ब लायर But बर्ड। it's not playing, but आप यदि लिंक में कॉपी करके
हाँ, उसको आप बाद में देख लेना, अभी शायद ऑडियो हाँ नहीं जा पा रहा होगा। हाँ। एक्चुअली इसमें छोटा सा फंक्शन होता है शेयर करने के पहले कि ऑडियो भी शेयर करना, वो मिस कर गया मैं करना, पर मैं अभी आगे बढ़ जाता हूँ इसके। तो ये भी अपनी महिलाओं को, महिला मित्रों को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। सॉरी, मैं वापस वहां कैसे आऊं? जस्ट ए मिनट। आई एम नॉट गो बैक टू माई, हाँ अब मैं अच्छा वहां पहुंच गया, चलिए। ओके, हाउएवर ये जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए, देर आर लिमिटेशंस ऑफ आर्ट्स बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स। दे आर मेनली फॉर मेटिंग पर्पस. Some of them may be taught and trained by humans like chimpanzee, but these skills are not transmitted either horizontally or vertically. These behaviors do not involve cultural transmission or innovation or intentional designs which align with the creativity, and the human definition of art does not apply to these arts by animals and birds. It is only the Homo species, not only Homo sapiens, but Homo neanderthal, Homo erectus, Homo habilis, Australopithecus, तो जो हमारी प्रीवियस स्पीशीज थी, उनके अंदर कलात्मक संवेदनशीलता पैदा हो चुकी थी, और उसकी शुरुआत हम बॉडी पेंटिंग के रूप में देख सकते हैं, और उसकी परिणति हम गुफाओं की पेंटिंग, जो भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं हैं, तो इस तरह की कलात्मक संवेदनशीलता प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बींग्स के अंदर आ चुकी थी। और फिर what was the evolutionary significance of arts for all Homo species, not only Homo sapiens? These artistic evolution, they are useful to foster social cohesion, to enable communication, to have shared values, to have collective action, to promote group survival and adaptation. तो इनका सर्वाइवल वैल्यू थी, इनके कारण हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ती थी, सिंबॉलिक थिंकिंग बढ़ता था, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनती थी, और ये जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था, सर्टेनली इट वाज सर्विंग द फंक्शन ऑफ मेट सिलेक्शन एंड सेक्सुअल सिलेक्शन आल्सो. So the arts have been having biological motivation, like you see the tail of the peacock. तो जो पीकॉक है, जो मेल है, वो इतनी भारी भरकम पूंछ लेके क्यों चलता है? उसको तो सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलता है. That peacock with a heavy tail, long tail, is vulnerable to predators. लेकिन भले वो मर जाए, लेकिन वो जितने दिन जिंदा रहेगा, उतने दिनों में वो अपनी फीमेल को आकर्षित करके अपने स्पर्म उस फीमेल को देके अपनी जीन को सरवाइव कर जाएगा, भले खुद कम दिन जिए. तो इस तरह का ये ट्रेड ऑफ कहलाता है कि खुद मर जाएगा लेकिन अपनी जीन को आगे बढ़ा देगा, क्योंकि अपनी पूंछ के माध्यम से रिझा लेगा वो महिला को. और फिर जो आर्ट के कारण जो ब्रेन इवोल्यूशन हुआ है, वो हमारे ब्रेन के अंदर बढ़ोतरी करता चला गया. उस इवोल्यूशन के कारण, कला के कारण, हमारे अंदर सिंबॉलिक थॉट की प्रक्रिया डेवलप हुई, और ये सिंबॉलिक थॉट अल्टीमेटली कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट बने, और अल्टीमेटली भाषा या लैंग्वेज का इवोल्यूशन भी. तो पहले कलाओं का इवोल्यूशन हुआ और बाद में भाषा का इवोल्यूशन हुआ. तो ये सारी कहानी है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की. The art and literature are outcomes of cultural evolution, and that cultural evolution is occurring in parallel with brain evolution. There are evidences from archaeological record from 200 to 2 million years back or more. Increasing number and complexity of archaeological artifacts, they were occurring in parallel with the increase in the size of the cranial capacity, and demonstrating a concordant progression of brain size and cultural development. दोनों चीजें कदम ताल करके साथ में चल रही थी. होमोसेपियंस के पहले वाली होमो स्पीशीज के अंदर ब्रेन का साइज बढ़ता जा रहा था, और उन होमो स्पीशीज का कल्चरल डेवलपमेंट, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट बढ़ता चला जा रहा था. तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा. न्यूरोलॉजी इन आर्ट्स एंड लिटरेचर which have occurred without any conscious effort. For example, there have been many paintings by artists
जिन लोगों ने ये पेंटिंग बनाई उन्हें नहीं पता था कि वो कोई न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना बता रहे हैं। वो तो हम लोगों ने बाद में ढूंढा जाकर, अरे इस पेंटिंग में फला न्यूरोलॉजी दिख रही है, इस पेंटिंग में फला चीज दिख रही है। तो मैं उसके और उदाहरण दूंगा। रेनेसांस आर्ट के अंदर एक फेमस पेंटिंग है बाय राफेल, ट्रांसफिगराजोन। इसमें आप जीसस क्राइस्ट को देख रहे हैं, और नीचे बॉटम में आप देखिए एक बच्चा है बॉटम राइट साइड में, उसको एपिलेप्सी का दौरा आ रहा है या कोई उसको पोजेशन सिंड्रोम हो गया है, और उसका पिता उसको पकड़ के खड़ा हुआ है, और ईसा मसीह आके उस बच्चे को छूते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और उसकी वो बीमारी दूर हो जाती है मिर्गी की। या फिर ये एक और पेंटिंग है जिसमें आप ध्यान से देखिए नीचे की तरफ, इस बच्चे का पांव अपनी माँ के हाथ के ऊपर रखा है, और उसका अंगूठा जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ, ये बेबिस की साइन है। तो जब भी आप एक इन्फेंट के पगथली को, सोल को टच करते हैं, बाकी उंगलियां नीचे मुड़ी रहती हैं, अंगूठा ऊपर की ओर जाता है, ये फिजिकल है। तो उस जमाने के जो आर्टिस्ट थे, सोचो उनका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा था। फिर चार्ल्स डिकन्स का नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड, मैं उसमें से कुछ लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा, और ये लागू होती देजा वू के ऊपर। देजा वू का फिनोमेना एपिलेप्सी में देखा जाता है और कई नॉर्मल लोगों को भी होता है। वी हैव ऑल some experience of a feeling which comes over us occasionally of what we are saying and doing having been said or done before in a remote time, of our having been surrounded div ages ago by same face, objects, circumstances, of our knowing perfectly what will be said next as if we suddenly remembered। हम सबके साथ होता है ये जो क्षण मैं इस समय जी रहा हूं, ऐसा ही क्षण मैंने पहले भी कभी जिया था, और अब ऐसा ही कुछ होने वाला अगले क्षण, और ये स्थिति कुछ ही सेकंड रहती है और फिर गायब हो जाती है। इसको देजा वू बोलते हैं। ये एपिलेप्सी में ज्यादा देखने को मिलती है और हेल्दी लोगों में भी देखने को मिलती है। इसी देजा वू को अल्फ्रेड टेनिसन ने, सॉरी स्पेलिंग गलत है, टेनिसन होना चाहिए, उन्होंने साहित्यिक काव्य की भाषा में कहने की कोशिश करी। मोर ओवर समथिंग इज आर सीम्स that touches me with mystic gleams, like glimpses of forgotten dreams, of something felt, like something here, of something done I know not where, such as no language may declare। Dostoevsky was a famous Russian novelist, और उनकी रचनाओं में अनेक पात्र मिर्गी रोग से ग्रस्त हैं। उनकी महान रचना द इडियट का प्रमुख पात्र है मिस प्रिंस मिकिन। उसको उसी प्रकार के दौरे आते हैं जो लेखक को खुद आते थे। एक उदाहरण देखिए, अचानक मानो दिमाग में आग लगती है, जीवनी शक्ति में गजब की तेजी आ जाती है, तड़ित विद्युत की तीव्रता से जीवन और चैतन्यता का प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है, आत्मा और दिल प्रकाशमान हो जाते हैं, और फिर एक दौरा आता है। एक अन्य अवसर पर प्रिंस मिकिन कहता है, उस एक क्षण में मुझे समझ में आ जाता है कि बाइबल के 10वें अध्याय में सेंट जॉन के उस वाक्य का क्या अर्थ रहा होगा कि अब काल भी समाप्त हो गया है। या शायद ऐसे ही किसी क्षण में मोहम्मद साहब ने कहा होगा कि उन्होंने अल्लाह के रहने की तमाम जगहों को इतने थोड़े से समय में देख लिया कि उतनी देर में एक घड़ा पानी भी खाली नहीं किया जा सकता। सेंट पॉल का ईसाई धर्म के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। शुरू में वो यहूदी थे और ईसाइयों के कट्टर विरोधी। शायद उनको मिर्गी के दौरे आते थे। उनको एक दौरे में अजीब सी आध्यात्मिक अनुभूतियां आई, और वो लिखते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं शरीर के अंदर था या बाहर, और ईश्वर ने मुझे कुछ पवित्र रहस्य बताए जिनको होंठ अब दोहरा नहीं सकते। और उस चित्र को दर्शाते हुए रेनेसां या पुनर्जागरण के काल की यह एक फेमस पेंटिंग है। और फिर उस समय सेंट पॉल की उम्र 30 वर्ष थी। वो दमिश्क जा रहे थे। एक घटना हुई, उनको तीज प्रकाश दिखाई दिया। इसको हम न्यूरोलॉजी की भाषा में बोलेंगे विजुअल हेल्यूसिनेशन। और ये विजुअल हेल्यूसिनेशन कब होता है? जब एपिलेप्सी का फोकस ऑक्सीपिटल लोब में हो। वो जमीन पर गिर पड़े, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, परंतु वो उठे तो हांधे हो चुके थे। इसको हम न्यूरोलॉजी की भाषा में बोलेंगे पोस्ट इक्टल ब्लाइंडनेस, जो कि रिवर्सिबल होती है। 3 दिन बाद उनको रोशनी फिर मिल गई, लेकिन इस घटना के बाद वो यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म के फॉलोअर बन गए। शेक्सपियर की रचनाओं में इसका उल्लेख होता है। चेखव की रचनाओं में उदाहरण मिलते हैं। दास्तोयेवस्की, शर्लक होम्स, लियोनार्डो दा विंची, इन सब की उदाहरणों में मिलते हैं।
शेक्सपियर ने नींद में चलने की बीमारी का उल्लेख मैकबेथ में किया है कि किस तरह डॉक्टर ने लेडी मैकबेथ को अचानक नींद से उठकर चलते देखा और वो मंच पर अन्य पात्रों के मध्य आकर खड़ी हो जाती है और दूसरे पात्र चिल्लाते हैं, देखो देखो उसकी आंखें खुली हैं। शेक्सपियर की अवलोकन क्षमता गजब की थी, लगभग क्लिनिशियन के समान, तभी तो उनके वर्णन इतने सटीक और पहने होते थे। शेक्सपियर की एक प्रसिद्ध लाइन है, देयर इज ए मेथड इन हिज मैडनेस। उनके पागलपन में भी एक सलीका है। और वो कहते हैं कि इस धरती और स्वर्ग में जितनी चीजें हैं वो तुम्हारे दर्शन शास्त्र के तमाम सपनों से भी ज्यादा हैं। और पार्किंसन के बारे में उनका एक नाटक है हेनरी द्वितीय, उसमें एक लॉर्ड से नाम का पात्र है और उसको शायद मौत की सजा मिलने वाली है। कसाई पूछता है, अरे आदमी तुम कांपते क्यों हो? लॉर्ड से बोलता है, भय नहीं, पक्षाघात मुझसे ये करवाता है। पक्षाघात मतलब शेकिंग पाल्सी, जो उस समय पार्किंसोनिज्म का नाम था। और एक दूसरा पात्र बोलता है, तुम यूं मुंह क्यों हिलाते हो मानो हाँ कहना चाहते हो? मतलब उस इंसान को ऐसे ऐसे मुंडी हिल रही थी और वो टिटुबेशन कर रहा था। वो पात्र उससे बोलता है, क्या कभी तुम्हारा सिर हमेशा स्थिर हो सकता है? हेनरी फोर में शेक्सपियर लिखते हैं कि महामहिम को फिर दौरा आ गया है और वो राजा बोलता है, देखो मेरी दृष्टि जा रही है, मेरा दिमाग चकरा रहा है। और ये एपिलेप्सी का वर्णन है। एक अन्य नाटक रिचर्ड में एक बूढ़ा पात्र यार्क कहता है, मेरी ये भुजा तुमको दंड देती, काश अगर वो लकवे की कैद में ना होती। और इंसोम्निया के ऊपर हेनरी नाटक में राजा कहता है, रात्रि के इस प्रहर में मेरी हजारों प्रजाएं सो रही हैं और मैं जाग रहा हूं। और फिर भारतीय साहित्य में से मैंने कुछ उदाहरण ढूंढने की कोशिश करी। फिलहाल मैं उन उदाहरणों को यहाँ नहीं ला पाया हूँ, पर मैंने पहले पढ़ा है। धर्मवीर भारती की एक किताब मेरे पास है, एक साहित्यिक के प्रेम पत्र। उसमें उन्होंने पुष्पा भारती को अपने पत्र लिखे हैं और उसमें कुछ पत्रों में उन्होंने अपने कमर का दर्द और पांव के दर्द का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। ये सब अनायास है, अनकॉन्शियस एफर्ट है। वो नहीं जानते थे कि वो न्यूरोलॉजी डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो तो अपनी पीड़ा डिस्क्राइब कर रहे थे। रविंद्र कालिया एक साहित्यकार हैं जो बहुत समय तक ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने अपनी शराब की लत छोड़ने की जद्दोजहद को बड़े डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि एक एडिक्ट कैसे अपने आप को डी एडिक्शन करना चाहता है और सफल होता है, असफल होता है, वो कहानी चलती है। संस्कृत महाकवि माघ ने मिर्गी की तुलना समुद्र से करी है। दोनों जमीन पर पड़े हैं, दोनों शोर करते हैं, दोनों की भुजाएं लहराती हैं, दोनों से झाग निकलता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक सीरियल आया था और याद करिए कि उसका जब सपना शुरू होता था तो वो अपनी साइकिल उल्टी लेके घर के अंदर प्रवेश करता था और उसके चेहरे पे ट्विचिंग आती थी, फेस की फोकल सीजर। और उसके बाद वो ट्रांस में चला जाता था, ऑरा में चला जाता था और उस ऑरा में वो कल्पना में चला जाता था। ऐसा एपिलेप्सी में हम पढ़ते हैं। इस तरह की एपिलेप्सी को हम टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी बोलते हैं या पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर्स बोलते हैं। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि श्याम बेनेगल इस सीरियल के डायरेक्टर थे और उनके साथ मेरा इंदौर में अच्छा मिलना हुआ और मैंने उनसे इस बात की चर्चा करी तो ही हिमसेल्फ वाज अनअवेयर। बोले मेरा तो जो साइंटिफिक एडवाइजर था उसने मेरे को बोला ऐसा सीन डालना, मैंने डाल दिया। बोले आप मेरे को पहली बार बता रहे हो कि उसका ये मेडिकल बैकग्राउंड था। मराठी भाषा में भवान महाजन ने एक किताब लिखी है, अंतस के महाजन परिजन, जिसमें उन्होंने अनेक बीमारियों का, अनेक पात्रों का वर्णन किया है, जिसमें से कि कुछ किस्से न्यूरोलॉजी से मेल खाते हैं। कलर्स और ब्रेन को लेकर बहुत सारी पेंटिंग्स के ऊपर अध्ययन किया हुआ है और ये कुछ एग्जाम्पल हैं। एक पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस होने के पहले की उसकी पेंटिंग, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट थी। फिर उसकी कलर विजन जाने लगा, धीरे धीरे उसकी पेंटिंग में डिग्रेडेशन होने लगा और वो खत्म होती चली गई। ये उससे एक फलों को प्रिंट करने को कहा गया और उसने सारी पेंटिंग ब्लैक एंड व्हाइट में करी। ये बीच में जानबूझ के हमने एक संतरा रख दिया है और उसकी कलर ब्लाइंडनेस बढ़ती चली गई और उसकी पेंटिंग में इस तरह से रंग गायब होते चले गए। और ये सब उसकी पेंटिंग के एग्जाम्पल थे। ये एग्जाम्पल है एक आर्टिस्ट का जो बहुत अच्छे पोर्ट्रेट बनाता था, लेकिन उसकी आर्टिस्टिक स्किल डिमेंशिया बीमारी, और डिमेंशिया का एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। और आप देखिए धीरे धीरे समय के साथ उसकी कलात में कितना डिग्रेडेशन हो रहा है। लेकिन इसका विपरीत भी हमने कुछ केसेस में देखा जिसके फोटो मैं आज यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। इन सम केसेस देयर इज ए पैराडॉक्सिकल एनहांसमेंट ऑफ आर्टिस्टिक स्किल एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेन डिसीज। लिटरेचर के अंदर अनेक प्रकार के मुहावरे, कहावतें, उपमाएं जो आती हैं वो साइनेस्थीसिया के कारण आती है। मतलब ये कि ब्रेन का एक पार्ट दूसरे पार्ट से बड़ा रिचली कनेक्टेड रहता है, इसीलिए तो उपमा का जन्म होता है।
इसीलिए तो गुलजार जैसे लेखक कह पाते हैं, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू। तो आप सोचिए, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स और ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो इन आंखों की महकती हुई खुशबू को देख पा रहे हैं। ऐसी उपमा, इस तरह की मुहावरे, इस तरह की कहावतें क्यों आती हैं? क्योंकि न्यूरोलॉजी में इनका संपर्क है, इनका आपस में संबंध है। कला इन्हीं से जन्म लेती है, साहित्य इन्हीं से जन्म लेता है। तो अब मैं कुछ ऐसे उदाहरणों पे आऊंगा जो विथ कॉन्शियस एफर्ट थे। अभी तक जो मैंने बोले वो विदाउट कॉन्शियस एफर्ट थे। तो विथ कॉन्शियस एफर्ट में मैं एग्जांपल दूंगा हलातोल का। हलातोल मालवी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है उथल पुथल, और क्रिएटिव उथल पुथल, रचनात्मक उथल पुथल। ये एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट हैं इंदौर के, जिनसे मेरा परिचय कराया था प्रभु जोशी जी ने, दिवंगत मित्र मेरे प्रभु दा। और मैं उन दिनों, उनको पता था मैं एपिलेप्सी पर काम करता हूँ, तो इंदौर के 7-8 मूर्धन्य कलाकारों को उन्होंने इनवाइट किया मेरे घर पे, और हमने 1 घंटा उनसे बातें करी। एपिलेप्सी क्या होती है, क्यों होती है, उससे पीड़ित मरीज को क्या क्या भोगना पड़ता है, क्या 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 फीलिंग्स आती हैं। और फिर हमने उनको कहा अब आप जाइए और आपको जो आपने समझा एपिलेप्सी के बारे में थोड़ा और पढ़िएगा, और आप इसके ऊपर पेंटिंग्स बनाइए। तो ये वो पेंटिंग्स थी, ये आज भी मेरी संपत्ति हैं, आज भी मेरी धरोहर हैं, जो प्रभुदा ने बनवाई थी इंदौर के कलाकारों से, एपिलेप्सी एंड आर्ट को। तो ये कॉन्शियस एफर्ट था, उस आर्ट का हिस्सा था जिसमें इंदौर के कलाकारों ने एपिलेप्सी और आर्ट को मिलाकर लिखा था। माइग्रेन के मरीज मेरे पास आते हैं, और मैं उनसे कहता, उनमें से कई मरीज कहते हैं कि साहब हमको दौरा है, हेडेक का अटैक आने के पहले आरा आता है, और उस आरा में कुछ कुछ विजन दिखाई पड़ते हैं। और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप उसकी पेंटिंग बना सकते हैं? तो उनमें से कुछ लोग मुझे पेंटिंग बना के देते हैं, तो कुछ मेरे मरीजों की हैं, और कुछ मैंने इंटरनेट से निकाली हैं। तो माइग्रेन के मरीज अपनी पीड़ा, अपने विजुअल इल्यूजन्स, अपने विजुअल हेलुसिनेशंस को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब सायास प्रभाव है। अब मैं आता हूं अलेक्जेंडर लूरिया के ऊपर। अलेक्जेंडर लूरिया वाज ए वेरी सीनियर न्यूरो साइकोलॉजिस्ट इन मॉस्को, और उनके 2 लघु उपन्यास मैंने पढ़े हैं, उसको हम नॉवेला बोल सकते हैं। एक उपन्यास है द माइंड ऑफ ए निमोनिस्ट, अ लिटिल बुक अबाउट ए वास्ट मेमोरी, और दूसरा है द मैन विद ए शेल्टर्ड वर्ल्ड, द हिस्ट्री ऑफ ए ब्रेन वूंड। और इन दोनों उपन्यासों में उन्होंने एक एक पात्र का वर्णन किया है। पहले उपन्यास में एक ऐसा पात्र है जिसकी गजब की मेमोरी थी। हम लोग कभी कभी किस्सा सुनते हैं ना कि फला जैन मुनि ने शतावदान किया, उनकी ऐसी मेमोरी थी। या एक शकुंतला देवी पहले आया करती थी और उनकी गजब की मेमोरी थी, वो कौन से साल में कौन सी तारीख को कौन सा वार पड़ेगा सब बता देती थी। तो इस तरह के लोगों को निमोनिस्ट बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन निमोनिस्ट की जिंदगी बहुत अच्छी नहीं होती है, ये लोग तो पीड़ित होते हैं। इस उपन्यास में यही कुछ आता है। और दूसरा उपन्यास था एक ऐसे सोल्जर के बारे में जिसको प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हेड इंजरी हुई थी, और उसकी मेमोरी और हायर फंक्शंस पे भारी नुकसान पहुंचा था, और उसकी जिंदगी क्या होके रह गई थी, शैटर्ड वर्ल्ड, तहस नहस दुनिया हो गई थी उसकी। ये उस उपन्यास में वर्णन है, अलेक्जेंडर लूरिया। और अलेक्जेंडर लूरिया के जो शिष्य थे वो ओलिवर सैक्स थे, जिनसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। मैं और नीरजा गए थे, और उन्होंने हमें 2 घंटे का इंटरव्यू दिया। उनका मैं फैन हूँ, उनकी सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। और उस इंटरव्यू में ओलिवर सैक्स ने मुझसे कहा कि अपूर्व, आज से 2500 साल पहले हिप्पोक्रेटिस ने कहा था मरीज कथाओं के बारे में, और उनको वो कहता था पैथोग्राफी, पेशेंट की पैथोलॉजिकल कहानियां। और हिप्पोक्रेटिस कहते थे कि ये जो कहानियां होती हैं, इनके पास एक अद्भुत शक्ति होती है। कैसी शक्ति? जो हमारे मन का जो छिपा हुआ रचना है, उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटा डालती है, इंसान के मन को उजागर कर देती है कहानियां। और ऑलिवर सेक्स ने कहा कि 19वीं शताब्दी के जो फिजिशियन हुआ करते थे, शायद शार्को हो, विलियम गावर्स हो, या फ्रायड हो, उन लोगों के अंदर मरीज कथाएं कहने की बड़ी अद्भुत कला थी। लेकिन 20वीं और 21वीं शताब्दी में वो कला समाप्त हो गई है, और ऑलिवर सेक्स ने उसको रिवाइव करने की कोशिश की। ये शाकोर थे जो साल्पीत्रे अस्पताल में पेरिस में थे, उन्होंने ऑर्गेनिक वर्सेस फंक्शनल का डिफरेंस बताया। और इसी तरह से सिगमंड फ्रायड थे वियना के अंदर, उन्होंने भी ऑर्गेनिक और फंक्शनल का डिफरेंस बताया। उन्होंने अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस बताया। हुआ क्या, समय के साथ
सब्जेक्टिव को हम गौण करते चले गए, अरे ये तो एनेक्डोटल है, ये तो मरीज की खुद की कहानी है। मैं एक डॉक्टर के रूप में उस मरीज में क्या पा रहा हूं वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ ज्यादा बड़ा सत्य है। ऐसा क्यों हुआ? Why objectivity is always considered superior to subjectivity? दोनों का इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर ऑलिवर सेक्स ने उस इंटरव्यू में मुझसे कहा उस दिन कि एक न्यूरोलॉजिस्ट को मल्टीपल रोल रखना चाहिए। वो एक फिजिशियन भी है और नेचुरलिस्ट भी है, वो एक ड्रामेटिस्ट भी है और थ्योरिटिशियन भी है, वो एक साइंटिस्ट भी है और रोमांटिसिस्ट भी है। और डॉक्टर ऑलिवर सेक्स ने कहा कि दुर्भाग्य से आजकल की जो हमारी केस हिस्ट्रीज हैं, जो हम जर्नल में केस रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, वो सब्जेक्ट को कैसे उल्लेख करती हैं? इन ए कर्सरी फ्रेज, और ट्राइसोमिक एल्बिनो फीमेल ऑफ 21 हु अ रेट आर ए ह्यूमन बीइंग। उन्होंने कहा मुझसे कि वी मस्ट डीपन अवर केस हिस्ट्री टू ए नरेटिव और टेल लेवल। और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए रीता शेरोन को मैं फॉलो करता हूँ। वो न्यूयॉर्क में प्रोफेसर है मेडिसिन की, और उन्होंने नरेटिव एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करी है। हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तो बड़े समर्थक है, हाँ सब कुछ एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड नरेटिव, कहानी पर आधारित। एनिक्डोट का भी अपना महत्व है। तो रीता शेरोन को मैं पढ़ता रहता हूँ, आप भी पढ़िएगा। वो नैरेटिव कहानियों के महत्व को बात करती हैं, और वो कहती हैं कि हमको चाहिए कि हम डॉक्टरों में और हमारे स्टूडेंट के अंदर ये नैरेटिव स्किल विकसित हो, तो हमारी लिटरेरी आर्ट भी विकसित होती चली जाएगी। ये एक बड़ी अच्छी किताब है जिसका मैं उल्लेख हमेशा करना चाहता हूँ। डियान एकरमैन है, ये एक कहानीकार हैं और साइंस के ऊपर लिखती हैं। और उनके हस्बैंड पॉल वेस्ट, वो एक नॉवेलिस्ट हैं, खूब अच्छे नॉवेल लिखते थे। उनको स्ट्रोक हुआ, हेमिप्लीजिया हुआ, अफेजिया हुआ, आवाज चली गई, स्पीच चली गई, लिखना पढ़ना चला गया, लेकिन 2 साल में गहन स्पीच थेरेपी के द्वारा उनमें अच्छा सुधार हुआ। वो ये कहानी है, अ स्ट्रोक, अ मैरिज एंड द लैंग्वेज ऑफ फीलिंग। और इस किताब का नाम उन्होंने रखा 100 नेम्स फॉर लव। क्यों रखा? क्योंकि मिस्टर पॉल वेस्ट हस्बैंड जब ये कहना चाहते थे आई लव यू, तो लव नहीं कह पाते थे, कभी कोई शब्द, कभी कोई शब्द, कभी कोई शब्द। इन 2 सालों में उन्होंने लगभग 100 शब्द लव के लिए बोले होंगे। 100 नेम्स फॉर लव, अल्टीमेटली वो रिकर हुए। ऑलिवर सेक्स से प्रभावित होकर मैंने भी अपनी कुछ कथाएं लिखी हैं। उनमें से एक कहानी का अनुवाद दादी नाम से अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की मुख्य पत्रिका न्यूरोलॉजी, द प्रेस्टिजियस ग्रीन जर्नल, उसमें यह अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ था। अब हम आते हैं कि न्यूरोलॉजी ऑफ आर्ट्स में हाउ एंड वेयर इन द ब्रेन द आर्ट्स एंड लिटरेचर आर क्रिएटेड एंड एंजॉयड आर एंड अप्रिशिएटेड। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप का अध्ययन कैसे किया जाए? इफेक्ट ऑफ ब्रेन लीजन ऑन द आर्ट, किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी को डिमेंशिया हो गया, और उस बंदे की कलात्मकता और रचनात्मकता और साहित्यिक भाषा में क्या डिग्रेडेशन हुआ, या कभी कभी पैराडॉक्सिकल एनहांसमेंट हुआ, उसका अध्ययन करते हैं। फिर हम फंक्शनल एमआरआई करते हैं और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करते हैं इन हेल्दी पीपल एंड डिसीज्ड ब्रेन एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग सम आर्टिस्टिक टास्क, एंड देन we look for artistic expression of their feelings and neurological diseases by patients themselves. There are many methods of investigating the relationship between art and neurology. I will not go into the details. कला के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति और उसका रसास्वादन, इसके अनेक सिद्धांत हैं, और इन सिद्धांतों की व्यापकता सौंदर्य शास्त्र अर्थात एस्थेटिक्स, रस सिद्धांत, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचती है। एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में मैं नितांत भौतिकवादी लहजे में कला और विधाओं को समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ। मस्तिष्क के कार्यकलाप किस तरह से कला की सृष्टि से संबद्ध है, ये समझने के लिए हमको गौर करना पड़ेगा उन पायदानों पर, उन प्रक्रियाओं पर जिनसे कोई कलात्मक रचना गढ़ी जाती है। तो क्रिएटिव प्रोसेस, एक आर्टिस्ट के मन में कोई पेंटिंग, कोई म्यूजिकल कंपोजिशन, चाहे वो मोजार्ट हो, चाहे वो ए आर रहमान हो, कोई धुन, कोई पेंटिंग, कोई मूर्ति शिल्प, कोई डायलॉग, कोई नाटक का सीन, कोई एक्सप्रेशन, ये क्रिएटिव प्रोसेस उसके मन में जन्म लेती है। लेकिन उस जन्म के पहले वो कैसे आती है? वो आती है उसके इंद्रिय भोग से, उसके सेंसरी परसेप्शन से। वो दुनिया को जीता है और अपनी तमाम इंद्रियों से दुनिया भर की कला को अपने मन में ग्रहण करता है, और उन स्मृतियों को भंडार करके रखता है, और
अपनी बुद्धि के द्वारा वो इन स्मृतियों का विश्लेषण करता है और उस सिंथेसिस से वो पैटर्न जनरेट करता है और उस पैटर्न के द्वारा वो कुछ नया गढ़ता है या फिर वो नकल भी कर सकता है और अंततः फिर वो अभिव्यक्त करता है उस चीज को। वो अभिव्यक्ति भी अनेक रूपों में हो सकती है, अनेक आर्ट फॉर्म के अंदर हो सकती है, पेंटिंग में, लिटरेचर में, आर्ट में, म्यूजिक में, डांस में, एक्टिंग में, ह्यूमर में, चुटकुले में। तो यहाँ दो शब्द आते हैं, आस्वादन और आस्वाद्य। आस्वादन मतलब अगर कोई कलात्मक चीज है तो मैं उसको ग्रहण कर रहा हूं और उसको एंजॉय कर रहा हूं, उसका मैं आस्वादन कर रहा हूं। और आस्वाद्य मतलब वो प्रोडक्ट, वो वस्तु, वो रचना जिसे कि मैं ग्रहण कर रहा हूं, वो आस्वाद्य है। द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड इन द माइंड ऑफ ए रेसिपिएंट। तो दोनों तरफ से वो प्रोसेस चलती है, एक तरफ वन वे चलती है और जो रिसीव करता है उसमें वो रिवर्स ऑर्डर में चलती है। तो लेकिन ब्रेन की प्रोसेसेस वही हैं दोनों के अंदर, बनाने वाले में भी और ग्रहण करने वाले के अंदर भी। और इन सब का अध्ययन फंक्शनल एमआरआई आदि से ब्रेन के अंदर किया गया है। इस अध्ययन के कारण के द्वारा जब कला और साहित्य को मस्तिष्क में समझने की प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ गई है, उसके कारण दो तरह की ईर्ष्या विकसित हुई है। एक होती है साइंस एनवी, और साइंस एनवी का ही पार्ट है न्यूरॉन एनवी। और ये ईर्ष्या किन लोगों के मन में विकसित होती है? अमंग्स द पीपुल ऑफ ह्यूमैनिटीज। थियोलॉजी मतलब धर्म विज्ञान वाले, और आध्यात्मिकता वाले, स्पिरिचुअलिटी वाले, इन लोगों के मन में ईर्ष्या हो जाती है साइंस के प्रति और न्यूरो साइंस के प्रति या न्यूरॉन के प्रति। ये स्लाइड मैं कई वर्षों से दिखा रहा हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि जब न्यूटन ने इंद्रधनुष का विज्ञान बताया था कि किस तरह आकाश में लटकी हुई पानी की बूंदों में से जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो प्रिज्म एक्शन के कारण वो स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में बढ़ जाती हैं। और जब इस विज्ञान को उन्होंने बताया तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि जॉन कीट्स बड़े दुखी हो गए। जॉन कीट्स, आपको पता है ना, बड़े फेमस कवि थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध लाइन आपको याद है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो जॉन कीट्स ने कहा, अरे न्यूटन तुमने क्या कर दिया? अरे इंद्रधनुष तो निहारने की चीज है, कविता लिखने की चीज है, साहित्य लिखने की चीज है, पेंटिंग बनाने की चीज है, तुम उसकी फिजिक्स बता रहे हो, बोर हो तुम। लेकिन नहीं, साइंस इज नॉट बोर। अगर विज्ञान नहीं होगा तो क्या क्या हम केवल जादू या मिरेकल या प्रायर प्रेयर के ऊपर विश्वास कर लें? इसको लोग रिडक्शनिज्म बोलते हैं। अरे विज्ञान वाले, तुम तो दुनिया की सुंदरता को रिड्यूस करके रख देते हो। किस लेवल पे रिड्यूस कर देते हो? फिजिक्स के लेवल पे, बायोलॉजी के लेवल पे रिड्यूस करके रख देते हो। लेकिन नहीं, रिडक्शनिज्म इज नॉट बैड, इट हैज सर्व्ड अस वेल। वीएस रामचंद्रन एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने न्यूरोलॉजी ऑफ आर्ट के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। ये उनकी एक प्रसिद्ध किताब है, फैंटम्स इन द ब्रेन। और वो ये कहते हैं कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन is a type of exaggeration and it triggers the hyperactivation in neurons leading to universal heightened response in the viewers. And he links this response to the Hindu concept of ras या ज्यूस। और वो कहते हैं कि एस्थेटिक यूनिवर्सल्स दुनिया की सभी सभ्यताओं में एक जैसे हैं। रामचंद्र कहते हैं कि एक आर्टिस्ट मनुष्य की इन्हीं आदिम प्रवृत्तियों को एक्सप्लॉइट करता है, इन टेम्पलेट्स को यूज में लाता है, इन बायस को उपयोग में लाता है और एक एस्थेटिक रिस्पांस उसके अंदर जन्म लेता है। रामचंद्रन कहते हैं कि आर्ट इज ए टाइप ऑफ एग्जेगरेशन ऑफ कैरिकेचर। वो ये कहते हैं कि आर्ट यूजेस अतिशयोक्ति अलंकार और वो चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। और अल्टीमेटली रामचंद्रन ने ही ये शब्द का गढ़ा था, न्यूरॉन एनवी। वो ये कहते हैं कि दिस टर्म डिस्क्राइब्स द इनसिक्योरिटी फेल्ड बाय सम रिसर्चर्स इन सोशल साइंसेस हु फील their field lacks foundational biological underpinnings which neuroscience is offering। और वो कहते हैं कि नो 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 नो, हमको नहीं चाहिए, हमको रिडक्शनिज्म नहीं चाहिए। लेकिन रिडक्शनिज्म इज नॉट बैड, रिडक्शनिज्म इज नॉट डी मीनिंग। रिडक्शनिज्म का अर्थ ये नहीं कि आप किसी सुंदर वस्तु की अनुभूति को खो रहे हो, बल्कि मैं तो कहूंगा रिडक्शनिज्म लिबरेट्स, इट एनहांसेस। और 19वीं शताब्दी जब 20वीं शताब्दी में तब्दील हो रही थी, तब मनुष्य की पहचान के तमाम सवालों को प्रायः मनोवैज्ञानिक भाषा में समझाने की कोशिश की थी। वो सिगमंड फ्रायड का जमाना था।
और अब हम 21वीं सदी के आरंभ में समाज की समझ एक न्यूरोलॉजिकल मोड़ पर आ गई है। इंसान की अस्मिता को मस्तिष्क के कार्यकलापों के रूप में देखा जा रहा है। दिमाग की अरबों खरबों कोशिकाएं और उनके मध्य अरबों खरबों संपर्क के संजाल और उनमें बहती हुई विद्युत गतिविधि के अरबों खरबों क्षण और उस गणित में निहित ढेर सारे अर्थ और निर्णय और ढेर सारी अनुभूतियां, स्मृतियां और संवेदनाएं, एवरीथिंग इज न्यूरोलॉजिकल। मानव की वैयक्तिकता के तमाम पहलुओं को आप घटा रहे हो, ऐसा वो लोग कहते हैं। मैं कहता हूं नहीं, मानव की वैयक्तिकता के तमाम पहलुओं को हम समझा रहे हैं और समझा रहे हैं। लोग कहते हैं मांस के लोंदे में निहित अणुओं और परमाणुओं के स्तर पे आपने उतार दिया है। नहीं, मैं कहता हूं उसको हमने ऊंचे पायदान पर चढ़ा दिया है, उतारा नहीं है। दार्शनिक और वैज्ञानिक बहस में और संवाद में न्यूरोलॉजिकल शब्दावली का असर अब साहित्य और कलाओं पर पड़ने लगा है। अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, वरना मानविकी या ह्यूमैनिटीज वालों का बस चले तो वैज्ञानिक प्रगति से उपजे ज्ञान और समझ की लगातार उपेक्षा करते जाएं, जैसा कि उन्होंने डार्विन के साथ लंबे समय तक किया था। व्हाट अबाउट स्पिरिचुअलिटी? मेरे एक मित्र ने कहा, अपूर्व, तुम्हारा ये बाह्य भौतिक ज्ञान तुच्छ है। असली ज्ञान, मुक्ति और मोक्ष तो अंतरात्मा के ज्ञान में है, ईश्वर के साथ एकाकार हो जाने में है, ढाई आखर प्रेम का पढ़ने में है। मैंने कहा, टेक योर ओन अप्रोच, ऑल द बेस्ट फॉर यू, नॉट माई कप ऑफ टी। और अंत में मैं आऊंगा थोड़ी सी देर कि ये एक एग्जीबिशन मैंने क्यूरेट करी थी ड्यूरिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये बताने के लिए कि ब्रेन इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट। ब्रेन एंड न्यूरॉन्स देमसेल्व्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट। और इसकी जो भूमिका मुझे मिली वो श्री मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के मुख पृष्ठ पर उन्होंने एक पंक्ति लिख रखी है, राम, तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैंने इसी को पैराफ्रेस किया, ब्रेन तुम इतने सुंदर हो, कोई कलाकार बन जाए सहज संभाव्य है। और ये देखिए कुछ तरह के चित्र हैं ब्रेन के। ये रेमन ही कहाल ने न्यूरॉन के सर्किट बताए हैं, अलग अलग मेथड हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, तरह तरह के स्टेनिंग्स हैं। अगर और ये पेंटिंग मैंने आयोजित की थी न्यूरोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में, मैंने सारी पेंटिंग लगाई थी करीब 100 के करीब, उसमें से मैं आज यहाँ केवल 8 या 12 दिखा रहा हूँ। और उनके मैंने अगर शीर्षक छिपा दिए होते और किसी, वो तो खैर न्यूरोलॉजी वाले देख रहे थे, न्यूरो सर्जरी वाले, मैं अगर इसको प्रीतम लाल दुआ सभागृह में लगाने की सोचता हूँ एक आरटी एग्जीबिशन में, और उसमें लिखूंगा मैं कि इनमें से एक भी चित्र मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये सब मैंने कहीं बाहर से उतारे हैं, तो ये सब अमूर्त कला के अद्भुत उदाहरण बनेंगे। ब्रेन इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट। एक से एक सुंदर चित्र आपको ब्रेन के दिखते हैं। और ये सारे मेथड्स जो हैं, दीज आर केमिकल स्टेनिंग बाय गॉल्गी एंड कहाल, एंटीबॉडी स्टेन्स, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, नैनोस्कोपी, कंप्यूटर साइमुलेशंस, डिफ्यूजन ट्रैक्टोग्राफी, इतनी तरह की विधियां विकसित हो गई हैं ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन करने के लिए। और अब मैं आता हूं भारतीय सौंदर्य शास्त्र के ऊपर, इंडियन फिलॉसफी में आर्ट और एस्थेटिक्स को। हमारे यहाँ की एक क्लासिक रचना है जो आज से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले भरत मुनि ने लिखी थी, और उस किताब का नाम था नाट्य शास्त्र। यह कठिन किताब है, लेकिन उसके ऊपर एक समीक्षात्मक किताब मेरे पढ़ने में आई, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के ऊपर श्री सुरेंद्र बारलिंगे द्वारा लिखी गई भारतीय सौंदर्य सिद्धांत की नई परिभाषा। और मैं इसमें से केवल कुछ पंक्तियां लूंगा। हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा कहा गया है कि कलाकार का आनंद सृजनात्मकता का आनंद है, और आस्वादक मतलब जो उस कला को ग्रहण कर रहा है उसका आनंद समझ का आनंद है। और दोनों आनंद के पीछे दो तरह की प्रतिभाएं हैं। एक प्रतिभा को बोलते हैं कार्ययित्री, करने वाली, और दूसरी है भावयित्री, जो भाव हमारे मन में पैदा हो रहे हैं। तो जो पहली प्रतिभा है कार्ययित्री, वो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की तरफ जाती है। सब्जेक्टिव मतलब कलाकार के दिमाग में उठ रही है, और उसको वो एक ऑब्जेक्टिव पदार्थ के रूप में क्रिएट कर रहा है। आत्मनिष्ठ से वस्तुनिष्ठ की तरफ की यात्रा है। और भरत मुनि कहते हैं कि जो आस्वादक है उसके मन में जो यात्रा होती है भावयित्री, वो ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव, मतलब उसके सामने एक पेंटिंग है, उसके सामने एक A R रहमान की धुन है, या भीमसेन जोशी की कोई बंदिश है, वो जब उसको सुनता है वो
वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके मन में जो सब्जेक्टिव फीलिंग आती है, जो आनंद होता है, ये दोनों यात्राओं की जो न्यूरोलॉजी है वो ओवरलैपिंग है, भले ही वो रिवर्स में चलती हो पर वो ओवरलैपिंग है। ये हमारे यहाँ के भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा था। और ये संभव क्यों हो पाता है? ये इसलिए संभव हो पाता है कि जो न्यूरो सफिक्स है, नहीं सफिक्स नहीं, न्यूरो प्रीफिक्स है, इट इज हैविंग ए सुपर फेकंडिटी, द अमेजिंग सुपर फेकंडिटी ऑफ न्यूरो प्रीफिक्स। एक तरफ आप पढ़ेंगे न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरोपैथोलॉजी, न्यूरो फार्मेकोलॉजी आदि आदि आदि, दूसरी तरफ आप पढ़ेंगे न्यूरो इथोलॉजी, न्यूरो एंथ्रोपोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, न्यूरो एस्थेटिक्स, न्यूरो पॉलिटिक्स, आदि आदि आदि। तो आप सोचिए कितना कितना उर्वरक, कितना फीकंड ये है। मैं इसको एनलार्ज करता हूं तो थोड़ा सा ये दिक्कत दे जाता है, ठीक है। तो ये न्यूरो प्रीफिक्स इतना उर्वरक क्यों है? व्हाई द न्यूरो प्रीफिक्स इज सो फेकंड? Because humans themselves are social animals and brain is the seat of socialization. Hence, no wonder neuro is so fond of making affiliations which are cross disciplinary and interdisciplinary. देखिए ना कितने साइनेप्स, जितने न्यूरॉन है उसके 1000 गुना साइनेप्स होते हैं। द सुपर फेकंडिटी ऑफ न्यूरोप्रीफिक्स गोज डाउन टू माइक्रो लेवल, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कंक्लूजन में व्हाट आर द टेक होम मैसेजेस? Science and neurology on one hand and arts and literature on one hand, there is no dichotomy between them, but there is a continuity and complementarity. The evolutionary history of art and literature in human brain is very old, even beyond Homo sapiens, and it carries survival benefit. However, the art in animals has limitations. There are many examples of neurology in art and literature, जो कि या तो अनायास हो सकते हैं या सायास हो सकते हैं, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट हो सकते हैं, विद कॉन्शियस एफर्ट हो सकते हैं। और art and literature are outcome of cultural evolution, and this cultural evolution is aided and supported by neurological evolution. And there are many methods of investigating nervous system structure and function which have led to testable theories. ऐसी theories जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं प्रयोग के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर, और ऐसी हाइपोथेसिस जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। और ये थ्योरीज और ये हाइपोथेसिस विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरे हैं। दे हैव बीन प्रूव्ड एम्पिरिकली करेक्ट। Super fecundity of neuroprefix at macro and micro level underlies all higher functions of brain, including artistic sensibility. Scholars in humanities, arts, literature, philosophy, spirituality should not suffer from science envy and neuron envy. They must accept it, they must embrace it. और मैं ये भी कहूंगा कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र की विज्ञान सम्मतता बड़ी ऊंची है। और मैं ये भी कहूंगा कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम देमसेल्व्स आर एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट। और अंत में मैं करूंगा इस कविता से। एमिली डिकिंसन 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य की एक अच्छी लेखक और कवि थी। उनकी इस कविता का मैंने हिंदी में पद्यानुवाद भी करने की कोशिश किया है। ये मैं शायद पहले भी मेरे कुछ मित्रों को सुना चुका हूं, उनके लिए रिपीटिशन होगा, मैं फिर भी रिपीट करूंगा। द ब्रेन इज wider than the sky, for put them side by side, the one the other will contain with ease and you beside. आकाश से भी चौड़ा है फलक मस्तिष्क का, दोनों को साथ में रखकर तो देखो, समा लेगा वह आसानी से उसे और तुम्हें भी। The brain is deeper than the sea, for hold them blue to blue, the one the other will absorb as sponges buckets do. सागर से भी ज्यादा गहराई है दिमाग की, नीलिमाओं को जरा धारे रहो, सोख लेगा उसे वह यूं कि पोछा वो बर्तन हो। The brain is just the weight of God, for heft them pound for pound, and they will differ if they do, as syllable for sound. ईश्वर सा गुरुत्वमान है ब्रेन, किलो दर किलो तोल तो लो, फर्क गर हो तो महज इतना होगा कि जैसे शब्द और उसकी गूंज में हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फॉर्मल सेशन एंड हो गया सर। एक्सीलेंट एंड अनबिलीवेबल। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू से कि आपने कितना बढ़िया समराइज किया है इस चीज को।
जो हम लोग समझते नहीं है, ध्यान देते नहीं इस बात को, आर्ट एंड साइंस। नॉट नॉट envy, it's not to be envious, to be synergistic. Wonderful. I'll open it up to people who have raised hand. मैंने किसी का हाथ देखा था, um, अभी दिख नहीं रहा है, but anyone wants to raise hand, please unmute, raise hand, either one. How did everyone enjoy the session? Any questions? मेरे तो हैं 3-4, मैं I'll hold off till other people ask. Amba, anything coming? You're हमारी only psychologist in our batch. ब्यूटीफुल सर, सुन के इतना मजा आया, इतना मजा आया, ऐसे लग रहा है कि सुनते ही जाओ, आपका खत्म ही ना हो। अभी आपके बहुत सारे और लेक्चर्स भी सुनने हैं मेरे को, अभी वो पुराने लेक्चर्स भी सुनने हैं। एंड आई लिसन एंड देन आई गेट बैक टू यू सर। वंडरफुल लेक्चर सर, इस लेक्चर को हमको बार बार देखना पड़ेगा, बहुत कंटेंट था और बहुत नया कंटेंट भी था हमारे लिए, तो डेफिनेटली वेरी गुड फॉर आवर ब्रेन टू सोक इट ऑल इन। हाँ, मेरी सिस्टर किसलिए कहती है, वो भी सुन रही है, कि भैया आप बहुत ज्यादा कंटेंट डाल देते हो, और आपके टॉक में क्या कहती है वो, कि नॉलेज का आतंक होता है। इट्स अ गुड इंफॉर्मेशन अटैक। ओवरलोड इंफॉर्मेशन ओवरलोड सर, इसीलिए दोबारा दोबारा थोड़ा सा आराम से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा अंदर जाएगा। पर वो वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था सर, जो आपने बताया, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, जो दो चीजें Yes, कॉन्शियस हैं, कॉन्शियस विदाउट देखो तो विदाउट एंड, हाँ विदाउट बहुत इट, अच्छा था वो। yes, कुछ लोगों अनायास एंड ने कायास, आई रिमेम्बर द टू वर्ड्स, क्योंकि मुझे उसके लिए कभी हिंदी वर्ड्स नहीं मिलते हैं। और द न्यूरो बहुत ज्यादा है थी, न्यूरो एनवी वर्सेस, देयर वर टू एनवी। साइंस एनवी एंड न्यूरो एनवी, साइंस एनवी और न्यूरॉन एनवी, न्यूरो हाँ। एनवी एंड साइंस एनवी, यस। आओगे? बहुत ही बढ़िया। और कौन लाहौटी सर, आप कौन शेयर अनम्यूट करें। करेंगे? बहुत सारे सीनियर सर्स भी हैं आज, सीनियर लोग भी हैं, प्लीज शेयर विद अस, हम लोगों को। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। I'm Dr. Lahoti. हेलो हेलो डॉक्टर Yeah, लाहौटी। यस सर। yeah. I remember in 1972 when I went to USA and I was doing internship. I had a patient, 80-year-old female, who was not giving me history because she forgotten English and remembered Polish language. And the history which I obtained, that she had a stroke and she forgot English language. या And then her attendant came and told that this is the second stroke. After the first stroke, she forgot English and Polish and only remembered Hungarian because she was born in Hungary. I don't know what did they mean, but it is all related to the neurology, I think. यस यस, श्योर, वी डू सी सच पेशेंट्स। बिल्कुल। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? सर, मेरा एक प्रश्न है यस डॉक्टर अतुल करंडे। यस प्लीज। सर, भगवान रामकृष्ण देव के जो फोटोग्राफ्स है या उनका जो डिस्क्रिप्शन है साहित्य में, उसको भी देख के लगता है कि उनको भी शायद इपिलेप्सी की तकलीफ रही होगी। हाँ, यस, ये पढ़ा है मैंने भी। यस, आई नो, आई एग्री, आई रेड समवेयर। वो ट्रांस में चले जाते थे और कोई अजीब सी हरकतें करने लगते थे, डांस करने लगते थे। जी तो जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो एक एक प्रकार के अटैक आते थे। आई एम नॉट श्योर। सर, रिलेटेड टू दैट, जो हम नवरात्रा में देखते हैं कि कुछ लोगों को देवी आती है, वो वो क्या होता है न्यूरोलॉजिकली? आई थिंक दीपक मंशरमानी इसको अच्छे से बताएंगे। दिस फिनोमेना आर नोन एज पोजेशन सिंड्रोम, और अच्छा। पोजेशन सिंड्रोम आर कल्चरली सैंक्शनड। तो हमारी संस्कृति में अगर इस तरह की परंपरा है कि देवी आती है, तो कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी को हम बोलते हैं ससेप्टेबल। हम्म। So they are susceptible to hypnosis, they are susceptible to suggestions, they are susceptible to cultural norms। और अगर और लोगों को देवी आती है तो उनको भी आने लगती है। ये उनकी पर्सनालिटी की कमजोरी कहती है, हम उसको कमजोरी ना कहें, उनकी उनकी पर्सनालिटी का एक गुण होता है, और दे गो इनटू पोजेशन सिंड्रोम।
This is well described in psychiatry. Mm-hmm. जी सर, Wonderful. बिल्कुल सही, जैसा बोला वैसे बिल्कुल सही। थैंक यू। So, और सर एक दो चीजें, जैसे मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, तो हम जब भी बच्चे ऑफिस में होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, तो हम उनको एक ब्लैंक शीट दे देते हैं, तो जो कुछ भी ड्रॉ करें, कुछ भी अपने मन की, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हाउ वी हैव इट पोस्टेड ऑन आवर ऑफिस वॉल्स। yes, सब बच्चों की क्रिएटिविटी अलग तरह से बाहर आती है जब बिल्कुल आप अलग होती है। ड्राइंग यस कराते यस हैं, या श्योर। हाँ, तो नीरजा ने व्यवस्था कर रखी है हमारी क्लिनिक में। हम्म नीरजा ने कर रखी है, और बच्चों की जो आर्ट है उसको अलग अलग एज पे लोगों ने अध्ययन किया है। 4 साल की एज में, 5, 6, 7, कैसे उनकी कला इवॉल्व होती है, और कैसे उस कला से हम उस बच्चे के ब्रेन के साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन को कोरिलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत काम हुआ है हम्म साइकोलॉजी लिटरेचर में। बिल्कुल। और एटिपिकल, आजकल जो न्यूरो एटिपिकल है, ऑटिज्म और स्पेक्ट्रम है, यस, उन सबका ऑटिज्म भी। वालों की आर्ट के ऊपर भी बहुत अध्ययन हुआ है। कुछ हम्म ऑटिस्टिक बच्चे भले ही सोशली कम्युनिकेट ना करते हों, लेकिन उनके अंदर कुछ आइलैंड ऑफ जीनियस बचा रहता है अंदर ही अंदर कहीं पे, और वो जीनियस कभी कभी कला के रूप में अभिव्यक्त होता है। वंडरफुल। सर, मैंने वो वीडियो उठाया है, जो आप यदि डांस, लायर बर्ड का डांस दिखाना चाहते हैं, मैं शेयर कर सकती हूँ, यदि किसी और को क्वेश्चन नहीं है तो। हाँ जरूर। पूछूं कौन एक सा क्वेश्चन? डांस? अम्बा, बिल्कुल। सर, एक क्वेश्चन था कि जब हम ब्रेन वेव्स की बात करते हैं, तो नॉर्मल अपन बोलते हैं ना, बीटा, अल्फा, थीटा, गामा ना, और वो जो एक डेल्टा, और जो गामा वेव्स होती हैं, वो बोलते हैं कि यस दे आर सीन इन वेरी, वो जो सुपर कॉन्शियसनेस वाली स्टेज होती यस है। यस यस। हाँ, मैंने इस तो बात को उल्लेख किया था, एक बार मैंने टॉक दी थी हैप्पीनेस के ऊपर। और जी, जो लोग हर्षातिरेक, या उसको अंग्रेजी में शब्द बोलते हैं एक्सट्रेसी, यस, एक्सटेसी में यस, जब जाते हैं तो उनके ब्रेन में थीटा वेव्स आती हैं। और ये हाँ, लोग जो स्पिरिचुअलिटी में काफी ऊपर तक पहुंच जाते हैं और अपने मन को हाँ, साध पाते हैं, उनके हाँ, ब्रेन में थीटा वेव्स आने लगती हैं। दैट हाँ। इज सर, ट्रू। थीटा की आई थिंक गामा, उसको गामा हाँ गामा है, एक्टिविटी सॉरी बोलते हैं, थीटा नहीं, गामा गामा, एक्टिविटी। करेक्ट करेक्ट। जी, जी, थीटा तो जी, जी। एबनॉर्मल है, स्लो है। हाँ, और ठीक है। गामा वेव्स आती हैं, यस करेक्ट। जी, जी, जी। मेरा एक प्रश्न है। हेलो। हाँ हाँ, यस किसले? हाँ, मैं ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि YouTube पर ऐसे कई वीडियोस हैं, साउंड ट्रैक्स हैं, जो गामा वेव्स को बोलते हैं कि आप सुने तो आपको फायदा होगा। तो उनको कितनी देर सुनना चाहिए? मैं फील करती हूँ कि उनको सुनना अच्छी फीलिंग देता है, पर क्या उसकी कोई लिमिट है? हमें उसको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? कौन सी वाली वेव्स को हमें सुनना चाहिए? ना, ये मुझे नहीं मालूम। मैंने इस पे अध्ययन नहीं किया है, मैंने इसको रिसर्च पढ़ा नहीं है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर ये बात सही है कि कई तरह की ध्वनियाँ, कई तरह के संगीत के बारे में ये कहा जाता है कि उनसे आपको नींद आने में मदद मिलती है, उनसे आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है। यस, यस। उसमें गामा वेव होती है कि नहीं, वो मैं नहीं जानता। पर देर आर सो मेनी वीडियोस। आप एक एक्सपेरिमेंट सेट करके सुनिएगा एक बार। ठीक है, मैं सुनूंगा। सर, सर आप गुड इवनिंग, मैं फ्रेंजीव भारत बोल रहा चौरसिया, हूँ। हाँ, भारत डॉक्टर कमा। चौरसिया। हाँ भरत। तो सर एज यूजुअल हम लोग गैस करते रहे कि आप क्या बताने वाले हैं, एंड इतना सारा कुछ निकल के आ गया। देखिए, और सर मेरा है ना, एक दो चीजें थी। एक तो फंक्शनल एमआरआई से कुछ इसका पता लगता है क्या? और दूसरा प्रश्न है, क्या आपने कुछ ऐसे मरीज या ऐसे लिटरेचर के अंदर क्या है, कुछ ऐसा है कि एक ये इसलिए शायद उसके इतना अच्छा किसी चीज का आर्टिस्ट बनाओ, या इतना कोई लिटरेचर कुछ पर्टिकुलर चीज में बढ़ाओ, बिकॉज ऑफ सम न्यूरोलॉजिकल, मतलब जो न्यूरोलॉजिकल उसको कभी किसी को प्रॉब्लम रही हो, और उससे कोई लिटरेचर उभर के आ गया हो, या कोई आर्ट का पार्ट उभर के आ गया हो? मतलब कैन इट समटाइम्स हैपन that because of some so-called abnormality in neurology, a person could इन marvel हाँ, in particular या area in arts. इन दोनों का मैंने पासिंग उल्लेख किया था। फंक्शनल एमआरआई is one of the methods of investigating the functional aspects of human brain, which includes creative art and perception of art। और उसके ऊपर बहुत पेपर हैं। उस रिसर्च की अपनी लिमिटेशंस भी हैं, उसकी आलोचना भी बहुत हुई है कि उसको बहुत ज्यादा ओवर रीड नहीं करना चाहिए, ऐसे आलोचक भी बहुत हैं। और उसी तरह
सेंसिबिलिटी और रचनात्मकता या क्रिएटिविटी पर क्या असर पड़ता है। नॉर्मली वो असर जो निगेटिव साइड में जाता है, मगर अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें वो पॉजिटिव साइड में जाता है कुछ समय के लिए। अल्टीमेटली तो बाद में वो भी डाउन होगा। मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव में ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया। मैंने थ्योरी में या लिटरेचर में जरूर पढ़ा है। सॉरी सर, आपने अभी अभी जब डाउन कहा तो मुझे लगा डाउन के बारे में ही बात करता हूँ। आपने कहा अधिकतर डाउन होता है। व्हाट अबाउट डाउन सिंड्रोम फॉर एग्जांपल? डाउन सिंड्रोम, अभी आपने कहा डाउन होता है, अधिकतर ऊपर हाँ नहीं जाता है, डाउन होता है, तो मुझे एकदम लगा कि हाँ, व्हाट अबाउट डाउन सिंड्रोम में। डाउन मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लेखक था और उसको ब्रेन में डिसीज आ गई तो उसकी भाषा की क्षमता कम हो जाएगी। मैंने करल ब्लाइंडनेस के उदाहरण दिए थे। मैंने एक फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के द्वारा जो पोर्ट्रेट बनाए जाते थे वो सब डिग्रेडेशन हो रहा था, उसके उदाहरण थे। एनहांसमेंट के उदाहरण मैंने लिटरेचर में पढ़े पर मेरे अपने अनुभव में नहीं आए। मैं कह रहा हूँ सर, डाउन सिंड्रोम में इसलिए मैंने डाउन डाउन सिंड्रोम एक कहा। अलग बीमारी व्हाट है। अबाउट यस इन यस डाउन सिंड्रोम? उसमें डांस एंड म्यूजिक का होता है। आई डोंट नो अबाउट यस लिटरेचर यस सर। यस यस। तो डाउन सिंड्रोम से प्रभावित जो बच्चे होते हैं उनके बारे में पॉजिटिव बात ये कही जाती है कि उनका आईक्यू भले ही लो हो, लेकिन नंबर वन, दे आर सोशली एमिकेबल। बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, बड़े फ्रेंडली होते हैं, बड़े स्माइलिंग होते हैं, बड़े लविंग बच्चे होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले। और दूसरे, उनको म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है, उनको म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। वेदर दे कैन क्रिएट गुड म्यूजिक आई एम नॉट अवेयर, बट ऑफ कोर्स ये जरूर पाया गया है कि वो संगीत के ऊपर झूमते हैं, नाचते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता तो है। सर हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में केसेस होते हैं ना, एस्पर्जर्स में हाँ, पियानिस्ट हैं और म्यूजिशियंस यस काफी आ रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट यस, ऑटिज्म। लिटरेचर लाइक बुक वाइज। आई डोंट नो समवन हैज रिटन रेन मैन टाइप की मूवीज हैं। और तो इस सर तरह एक के और। फिनोमेना को इस तरह के फिनोमेना को ऑलिवर सेक्स ने अपने एक चैप्टर में लिखा है, और उस चैप्टर का टाइटल दिया था इडियट सावा। तो राइट। वो कहने को मूर्ख दिखते हैं बट दे आर सावा। सावा मतलब हाइपर जीनियस है वो, इडियट सावा करके उन्होंने इस चैप्टर में इस तरह के अनेक पात्रों का वर्णन किया है। हरी का एक लेकिन मैंने लेटर अध्ययन नहीं किया ऐसे किसी पात्र का। भी चाहिए। सर लेकिन क्या सर इसका मैं कोई वैज्ञानिक आधार है क्या? ये जो डाउन्स के बच्चे रहते हैं इनको म्यूजिक अच्छा लगता है, हाँ इसका है ना, कुछ? क्यों नहीं। इनकी न्यूरोबायोलॉजी को अध्ययन किया गया है कि ब्रेन में से क्या चेंजेस होते हैं, ब्रेन के सर्किट में क्या चेंजेस होते हैं, ब्रेन के कनेक्शन में क्या चेंजेस होते हैं। इसकी स्ट्रक्चरल इमेजिंग और फंक्शनल इमेजिंग दोनों पे काम हुआ है। बिल्कुल। और एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड? नहीं तो मैं वीडियो शेयर कर सकती हूँ बिफोर वी कंक्लूड। वंडरफुल सेशन सर वंस अगेन। और जल्दी से मुझे ये बोलना था, आपने जैसे बताया था कि पहले होमोसिपियंस के पहले वाले लोग भी आर्ट में थे और टैटूज और हाँ ये सब। तो अब हम लोग टैटूज को इतना जज क्यों करते हैं, जब पहले वाली जनरेशन में जज नहीं किया जाता था? आजकल जब लोग टैटू लगाते हैं तो लोग उसको जज करते हैं कि there's some abnormal behavior there. हाँ हाँ। तो वो आई थिंक वी शुड नॉट जज देम रियली। it's a वी piece शुड of नॉट। art. हम्म। यस। और सिमिलरली आप बोले और मेल एनिमल्स ज्यादा ड्रेसअप होते हैं और कलर्स होते हैं। तो आजकल स्पेशली वेस्ट में ये सब होने लगा है। लॉट ऑफ अब हो रहा है। guys are putting lot यस of यस। effort into beauty, and वो अच्छी हाँ बात है। मतलब everyone is entitled to be beautiful. यस, तो शायद ट्रांस लोगों में या क्वीर लोगों में ज्यादा होता होगा, आई डोंट नो, स्ट्रेट लोगों में कम होता नहीं, होगा। आजकल आजकल सब भी हो रहा है। बॉयज मतलब जैसे पिंक कलर अच्छा। आ रहा है और सब थोड़ा मूवमेंट टुवर्ड्स एक्सप्रेशन इज नॉट ओके। जज्ड एज रॉन्ग और राइट। मतलब एटलीस्ट मेरी तरफ से मैं देख रही हूँ। अनुराग, एनीथिंग यू वांटेड टू शेयर? कुछ लोगों ने अनम्यूट किया हाँ है। मैडम। मिस्टर हाँ लैंगर मैडम, ऑल्सो। इसमें यस। एज यूजुअल वेरी वंडरफुल। मजा आया बहुत इतना सर की तरफ से सुन के। उसमें एक चीज ये है कि सर ने ज्यादा फोकस इस पे ऑब्वियसली किया हुआ है कि हाउ art and creativity are there in neurology, and how what is the neurology of art. लेकिन there is a reverse direction also where art is therapeutic. Art as a therapeutic entity for not neurological so much, but a little bit in neurological rehabilitation also. But a lot of these therapies are there, maybe not so established in mainstream psychiatry, but they exist. So Yes. art therapy itself, music, dance. Alzheimer's and dementia.
I know And in personally people who have worked in that field. and even in anxiety and depression, for people Yes. with personality disorders, Yes. people with obsessive compulsive disorders, people Sure. with phobias, यहाँ पे बहुत ज्यादा. So there is a reverse reciprocal influence also कि आप neurological function को आर्ट के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं. So there is a sort of a reciprocal relationship between the brain and art. I Excellent fully point. agree. I think I should have covered or touched this aspect in 1 minute or so. So, music therapy, art therapy is well established part of therapeutic armamentarium, not only for neurological diseases, for many other diseases, but ultimately all these art therapy, they act through brain. They act through the neurobiological mechanisms, and they are gaining traction in the last 1 or 2 decades. सर हॉस्पिस में भी एंड ऑफ स्टेज में भी काफी यूज यस, करते हैं. पैलिएटिव केयर में, हॉस्पिस केयर में भी Palliative care में. इसका बड़ा महत्व है. हाँ तो वो पार्किंसोनिज्म हम में डांस थेरेपी का बड़ा महत्व है. राइट. तो सर ये हमारे हम अलग टॉक लाएंगे एक जो हीलिंग थ्रू आर्ट, दैट विल बी अनदर यस. टॉक. तो सर आपने जो नरेटिव मेडिसिन मतलब मेंशन उसमें किया, sorry. गो अहेड. नहीं, मैं ये बोल रहा था कि देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्री कि अगर आप ये यू लुक एट ए मूवी फॉर एग्जांपल लाइक जुरासिक पार्क, तो a lot of people would say कि अरे ये तो टेरिफाइंग हॉरिफाइंग डायनासोर्स हैं और वो they are you know like they evoke a sense of horror. But if you look at the music उसमें, the symphony which has been created, and we all remember कि वो हेलीकॉप्टर पहले जा रहा है और वो हेलीकॉप्टर उस वाटरफॉल के सामने उतर रहा है, and that symphony, that orchestra which is playing is a uplifting, cheerful, optimistic thing, and a lot of people have credited that music in turning Jurassic Park from a horror film to a film of wonder. Yes, It correct. became wondrous. That Yes. means the music changed the perception of the film itself. And it is surprising कि इनके जो म्यूजिक कंपोजर हैं वो स्टार वॉर्स की म्यूजिक के पीछे भी हैं. अगर आप वो सुने कि वो जॉर्ज के म्यूजिक के पीछे भी हैं, है ना? वो इंडियाना जोन्स का सीरीज के म्यूजिक के पीछे भी the same guy is there. But All the Jurassic Park, epic movies, yeah. epic movies. But this music changed the perception in people's mind of dinosaurs, and it brought about a sense of wonder. मतलब you can influence how the brain responds. You can change the perception of things through art. Yeah. And just That as is you true. said, Anurag, awareness is another thing. तो हमारी ये सीरीज के थ्रू हम यही चाहते हैं कि अवेयरनेस बढ़े. जैसे अब सर ने कितनी सारी चीजें मेंशन की, तो वी विल सी ओनली व्हाट आवर माइंड नोस. जब तक हमको आइडिया नहीं है इस चीज का तो हम उसको अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं. तो दिस लेक्चर वाज वेरी वेरी यूजफुल आई थिंक सर. हम लोग सब अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं तो देन एक्शन विल फॉलो कि वी विल बी मोर सिनर्जिस्टिक. तो मैं नरेटिव मेडिसिन का जल्दी से बता रही थी. आई एम एक्टिवली इन्वॉल्व हियर इन द शिकागो एरिया लैंड. हम लोग हर महीने में 2 बार मिलते हैं एंड वी डू राइटिंग प्रॉम्प्ट्स. वी हैव अ होल आवर स्ट्रक्चर where we go through different things and we do a short prompt and we write and we try to improve our narration of what are things happening in life, in patient's life, our life. तो बेसिकली हम हर चीज में थोड़ा लिटरेचर ला सकते हैं. तो रीटा चेरॉन, आई हैड ऑनर टू मीट हर लास्ट ईयर. So thank you, sir, once again. Anyone else wants to say before I stop the session? I'll share the video real quick before we say bye. डॉक्टर पुराणिक, मैं रवि लंगर उज्जैन से बोल रहा हूँ. नमस्ते. नमस्कार. मैं जैसे अभी आज चंद्र ग्रहण है और अभी 1 बजे से सूतक लग गया है, तो क्या ये समय कुछ अपने आप को कॉन्शियसनेस को डेवलप करने का या अपनी जो भी कमियां हैं उससे आउटकम करने का कोई ठीक समय मानते हैं आप? इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? मैं मानता हूं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का धरती पर रहने वाले प्राणियों पर कोई असर नहीं पड़ता है. उनके स्वास्थ्य पर, उनकी मानसिकता पर, उनकी बौद्धिकता पर, उनके शुभ और अशुभ पर, किसी पर भी इन आकाशीय घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ता है.
So is it something to do with suggestive personality, like you said earlier? Is it, Yes, maybe. That may be. if it works for someone, it will work. Hmm. If Yes, someone is but I, skeptical, जाकी it रही won't. भावना जैसी प्रभु की मूरत वैसी। तो यदि आपको लगता है कि सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में कुछ गड़बड़ होगा तो आपको वैसी चीजें दिखने लग जाएंगी। true. नहीं, गड़बड़ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपने आप के जो कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए कुछ स्पेशल टाइम ये माना जा सकता है, तो आपके नहीं हिसाब से नहीं वो नहीं, नहीं इट इज माना नॉट जा ए सकता है, स्पेशल टाइम। राइट? नो, इट इज नॉट ठीक ए है, स्पेशल I टाइम। think Amba has some psychologist observation here. No, I only have an opinion that yet don't know. Like for years, we didn't know about the Big Bang, or that the universe is born out of nothingness. We didn't know till the time science proved it, right? Similarly, there are some things science has not yet proved. So we still don't, like, I would stay in a gray zone that I don't know, because science has not yet proved it. So it's the non-logical part, right? Our yogis knew something about it and they gave some directions to it. So we still don't know about it, or science still hasn't proved what may be the impact of it. So I like to stay in the gray zone, and I feel that when it was initially like kind of our yogis used to say that don't eat during this time, right? I don't have a reason to it. I don't know the science behind it, but there may be some reason which still my logical mind or my scientific mind doesn't know. But So, Dr. Amba, I don't you think that the onus of finding the cause is on the shoulders of those who believe, not on 100%. science? You know, that not science Yes, has to. yes. Is it Absolutely. going in the 100%. lines of tyranny of binary? Like हम लोग उसको black and white कर रहे हैं, तो maybe we just go back to what Dr. Puranik started with. That Yes. let's not have tyranny of binary. तो इस पे हम Yes. वीडियो लगाते हैं ताकि सबके टाइम के रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग इसको और एक्सटेंड नहीं करेंगे. Yes. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you so much, sir. Wonderful. I will share the video and that will be a bye-bye to everyone. Thank you so much. Enjoy the dance. सुनाई दे रहा है ना? या नहीं दे रहे, वही बर्ड है। हाँ। नहीं दे रहा तो कुछ वीडियो में दिखाई दे। तो ये मेल है जो डांस कर रहा है. Wow. Beautiful. Nature is amazing. Thank you. Thank you, sir. See you soon. Have a nice day, everyone. Thank you. Bye. Thank you. नमस्कार सबको. Bye. Namaste. अच्छा। Thank you, sir. Thank you. Wonderful.